کا آغاز اللہ کے کلام پاک سے ہونے جا رہا ہے. محافظ ذاکر صاحب سے درخواست کرتا ہوں تو اس سلسلے کا آغاز کلام اللہ سے کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے. آپ سب علماء کرام کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی اور لمبا وقت کاٹنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. مختصر انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کروں. جہاں ہمارے ضلع جمعیت کے امیر مولانا رحمۃ اللہ بھی آپ ضلع کے امیر ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے ذمہ داران بھی ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور آپ سب کو محنت کے لیے فائدہ مند بنائے. معزز علماء اکرام، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یعنی نیک لوگوں کی صفت کیا ہے کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں آپس میں مشورے سے کام کرتے ہیں. تو آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں قوم و ملت کی جو سانپ کو کاٹنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے یا ہمارے جسموں سے جو روح کو کھینچنا چاہتی ہے، یعنی دین اسلام کا جو سرمایہ وہ اپنے ہاتھوں سے نکالنا چاہتا ہے، تو اس سلسلے میں ہم یہاں اکٹھ ہو کر کے بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ اسی تعلق سے ہماری باتیں ہیں. یعنی جو ہمارا اصل مدعا ہے کہ وقف بورڈ کے خلاف یعنی جو کالا قانون یہ لوگ لاگو کیے ہیں، اس سلسلے میں ہم سب کو کیا کرنا ہے اور کس طرح اس کارروائی کو آگے بڑھانا ہے، اسی سلسلے میں انشاءاللہ مشورے ہوں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے ہم لوگوں کو پولیس پرمیشن مل چکا ہے. بڑی بات ہے. بعض جگہ پر سطح بھی رہے گی اور بار بار جو ہے اسٹیشن کے پاس چکر کاٹنا پڑتا ہے، مگر یہاں کے سی آئی نے ایک مرتبہ بول دیا اور دوسری مرتبہ بٹھا کر کے سمجھا کر کے ہم کو پرمیشن دے دیا.
ہم نے سوچا تھا کہ منگل کے دن کریں گے یہ کام، مگر اس نے کہا کہ ڈپارٹمنٹ میں جو ہے پولیس والوں کی کمی ہے، چہارشنبے کے دن انشاءاللہ یہ کام آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو اس نے چہارشنبے کے دن ہم کو دے دیا ہے پرمیشن۔ تو اب پرمیشن مل چکا ہے، اب ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر عالم دین اپنی جگہ پر ایک جماعت ہے، یعنی ہر عالم کے پیچھے ایک جماعت ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عالم الموت عالم الموت، یعنی ایک عالم کا مرنا ایک عالم کا مرنا۔ تو اللہ کے فضل سے یہاں ہر کوئی مساجدوں کے جو ہے ائمہ اور مدارس کے مدرسین نہیں، آپ کی بات سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، اور آپ میں سے ہر کسی نہ کسی امام کے مصلیان بہت زیادہ چاہنے والے بھی ہوتے ہیں، اور امام کی آواز پر لبیک کہہ کر کے بہت سارے مصلی حضرات جمع بھی ہوتے ہیں۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ہمارے کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے، یعنی چہارشنبے کے دن ٹھیک 10 بجے ہم سب کو جو ہے پگڑا روڈ میں جو پانی کی ٹینکی ہے وہاں کافی اچھا ایریا بھی ہے، سہولت بھی ہے، انشاءاللہ سب جمع ہو کر کے ایک عظیم الشان انداز میں ریالی نکالنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کے تعلق سے میرے کچھ ہدایات یہ ہیں کہ ریالی نکالتے وقت میں غیر مناسب حرکتیں ہم سے نہیں ہونا چاہیے، قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہم لوگ ریالی نکالیں، اور ایسے نعرے بھی نہ لگائیں کہ جس کی وجہ سے دوسرے بھائیوں کو تکلیف ہو اور خود ہم کو بھی اس کی سزا بھگتنا پڑے۔ تو ایسے نعرے بھی ہرگز نہ نکالیں، بلکہ ہم پورے ہوش و حواس کے ساتھ ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھانے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ یہ میرے ذہن میں کچھ باتیں تھیں، مزید باتیں آپ جو ہے ہمارے حضرت کی زبانی بھی سنیں گے اور آپ سے مشورہ لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے قوم کا درد لے کر کے جب کبھی اس طرح ظالموں کا شکنجہ ہماری قوم پر پڑتا ہے تو ان ظالموں کے ہاتھ کو روکنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر عالم کو روحانی طور پر جسمانی طور پر قوی مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، فکر کوشش کرنا، چاہے چھوٹی جماعت کے لوگ ہوں، بڑی جماعت کے لوگ ہوں، مالدار ہوں، بے کس ہو، بے سہارا ہو، جن سے جو دین اسلام کے لیے ہو رہی ہے وہ بڑی قابل ستائش ہے۔ حضرت علماء کرام کے سامنے اگر کچھ ہے کی ضرورت نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سب حضرات کی بات معلوم ہے اسلام لیے، کیونکہ یہاں میں کچھ مجھے یہ سمجھو کہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا میں یہاں کچھ بولنے کا مجھے موقع ملے گا۔ بہرحال حالات بنے ہیں، مجھے بولنے کا موقع دیا گیا ہے۔ اب ہم یہاں پر سارے ہمارے علمی بھائی ہیں، کچھ دین کا علم جانتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، دین کے تعلق سے
उन्हें सब कुछ मालूम है। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऐसा तो मेरे जहन में या मेरे इल्मी खाके में ये वक्फ के ताल्लुक़ से जो बातें दुनिया भर में हो रही हैं, हिंदुस्तान में हो रही हैं, मुसलमान के घर घर में हो रही हैं, मुसलमान का बच्चा बच्चा, क्या मर्द क्या औरतें, सब इसी के बारे में ये समझो कि गुफ्तगू हो रही है। और सारा सोशल मीडिया, चाहे वो किसी भी शक्ल का हो, फ़नी हो या तुम यूट्यूब की शक्ल में लो, जो भी है, तो आज वक्फ के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें हमें सुनने बोलने और क्या समझने की क्या है इंशाअल्लाह। ठीक है, अच्छी बात है। वक्त की जो बात लेके आए हमारे अब्दुल रहमान साहब STP के ज़रिए, इससे पहले भी रखते थे, बुलाए थे, हम भी यहाँ से थे, जब इनको बताए थे मसला सेंट्रल गवर्नमेंट का है, आप अपने गलियों में जो आवाज़ उतारा करेंगे तो आंखें खाने जाते, ऐसा कुछ करो सेंट्रल के आंखें खुले जी, ऐसी कोई तरकीब करो इसमें हमारा मैसेज सेंट्रल तक पहुँचे। हम स्टेट तक पहुँचे तो कुछ भी नहीं कर सकते, पार नहीं होता, बॉर्डर पार नहीं तो बातें चले। हमारी बात नंदीकोटपुर से करनूल या तो नंदियाल से खत्म, सब कुछ होना तो माशाल्लाह से पहले वक्त की फिक्र करते हुए अपने लोग इकराम जंतर मंतर पे बहुत बड़ा ये भी करे हैं, मगर मोदी को कोई फर्क ही नहीं हुआ। यानी कि अपने लोगों से, बहुत सारे लोगों से मस्जिदों में ऐलान करेगा सफता वगैरह करके विधवाएँ कौन कट्टे यानी कि वो स्कैम निकाल के भी जाए, तकरीबन तौर पर मेहनत चली हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान, मगर मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ा। पार्लियामेंट में बिल पास हो गई पहली बात, तो कोई मुसलमानों में हरकत में भी कोई भी आवाज़ उठाने वाले नहीं रहे। चलो उसके बाद राज्यसभा में भी बिल पास हो गई, एक एक क्वेश्चन के हिसाब से कोई आवाज़ नहीं रही, राष्ट्रपति से भी नामोदाम पड़ गया। क्योंकि आज बंगाल में अगर हुई तो भी क्या हुआ मालूम है, वहाँ अगर दूसरे अंदाज में फैला दी, वक्त नहीं है, ये आपस का झगड़ा है, खून खराबा करे, ऐसा बोल के पूरे नेटवर्क बंद कर दिए, इंटरनेट बंद हो गया वहाँ पे जो भी चल रहा, बाहर के हिंदुस्तान के कोई मुसलमान को खबर नहीं सकता। ये साजिश चल रही पहले से भी। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमान इकट्ठा है और अपने अपने जगह ताकतवर है, पर वो अपनी ताकत अपने एरिया तक ही है। जब हम ऐसे एक महफिल कानून बनाने वालों में रहेंगे तो वहाँ कुछ असर पड़ेगा। असेंबली में कोई MLA हमारे किरदार में, वहाँ असर पड़ेगा। एक दो तो है अल्हम्दुलिल्लाह मयम के तस्वीर वैसी है, जितने भी रहेंगे वो भी रहेंगे, उनके अपने पास पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ सुनाएंगे, अपनी जो गरजना है गरज के बताएंगे। ऐसे कोई तैदाद में अगर गई तो बेहतरीन बात रहती। और भी क्या, हम कल रैली निकालते, एक तरकीब, क्या तरकीब है हमारी, इसका चला रैली निकाले पटेल कुमार का नाम तो वापस घर चले आना है, उसके बाद क्या करना है, इसकी कोई तरकीब से अगर काम करेंगे कामयाब होंगे। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सरहद की दावत कबूल करके खा लेंगे, अल्लाह बोले चलेंगे, चलिए वो डिसीजन करने का है। अभी आज देखो हमारे अब्दुल रहमान साहब की बड़ी कोशिश, जद्दोजहद के बाद वो काम कर पहुंचा। तकरीबन 2 महीने हुआ शुरू कर, अब्दुल रहमान साहब फोन कर रहे, शकील भाई जी AC बनाएंगे, कैसा करेंगे, शकील भाई जी AC बनाएंगे, जैसा अबू बकर साहब को हो गई, फौरन अबू बकर साहब जमात 14 को हाजिर हो गए, दोनों बोले क्या भाई मैं दिन से कर रहा था,
ये जरूरी है, जरूरी है, मालूम होना जरूरी है तुम्हारे को। पर क्या हो रहा, मैं एक ही बात बताऊं, बेशक करेंगे, अदर करेंगे, माहौल बना, रात पूरी है, बात करना है, यानी कि प्रोग्राम सक्सेस होना है या दावत खा के जाना है, बोले तो बढ़िया। दावत खाने का खुश है, के काम कर रहा हूँ, ऐसे राय दीजिए। हाँ ये बात बता। तो मैं मेरे को इतला क्या है, इतला क्या है, मेरे को रैली है, रैली का मकसद क्या है, खाली नारे निकालते हुए पटेल सेंटर तक आके खत्म करना है, नहीं उसके बाद भी कुछ करना है, तो वो क्या करना है आप बताइए। ये सी कायम हो गई, रैली का जो है सो मशवरा कायम हो गया, तो कुछ ना कुछ सोचे होंगे ना रैली के बाद करना क्या है। नहीं पटेल सेंटर तक आके फिर वापस अपने अपने मुकाम को पहुंच जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ तक आ रहे हैं, पटेल सेंटर तक आएंगे, पटेल सेंटर पर ठहरेंगे, अबू बकर रहेंगे, घुमाएंगे, काम नहीं मेरे साथ जोरदार धमाकेदार एक बयान हो जाएगा, फिर उनके उस दिन चलो मैं उस दिन भी खाने वाने का इंतजाम है तो वैसा है कुछ देर खा ले। मारो ऑफिस तक जाके मारो को देना है, मारो करेगा ना वहाँ से कलेक्टर को देंगे, फिर आपको जवाब मिलेगा। देखा इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, रैली के बाद भी कुछ सोच होंगे, ऐसी बात करो, ऐसा काम करो जिसमें जितने भी वक्त की बिल बनाने में मौजूद रहे इनकी बुनियाद हलना है। सही बात, क्या बोला ना, सही बात। वैसा काम करो। हम ऐसे रैली निकालेंगे, खाना खाएंगे, मारो को देते मारो जा सकता सरे में नो पाकिस्तान में नो कलेक्टर गाड़ी को कुछ गाता दिलाता है नहीं देखता ही मार। बोले नुमाइशी तौर पे प्रोग्राम रखो, क्या इस बारे में बताओ आप क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं तो नहीं नुमाइशी तौर पे नहीं, हम कुछ हासिल करेंगे इंशाल्लाह। उसी मकसद के लिए तो कर रहे हैं तो है। चीनी भर का तो दबाव, छोटी से छोटी मुट्ठी भर का तो दबाव पड़ना, ऐसा कुछ करो, ये मेरी गुजारिश है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाने रैली होगी ना, रैली के बाद नेक्स्ट क्या करना, फिर वो असल सर के तौर पर अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला हर बात कहीं से बताता था, मगर जब जंग खंदक का मौका आया दुश्मनों से बचने के लिए क्या करना है, सहाबा से अल्लाह के नबी से मशवरा की, बाद सहाबा इकराम बोले कि हम खंदक खोदेंगे ताकि दुश्मन हम तक ना पहुंच सके। इस तरह मुख्तलिफ मशवरों से ही काम चलता है। तो बात लंबी चौड़ी चलने की बजाय हमारे शिकिर में बोले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अहम बातें बताए, पर हम आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम नहीं और अल्लाह के फजल व करम से लोगों का जहन बनाना भी आता है हमारे को, और किस तरह आगे कदम बढ़ाना है इंशाल्लाह इस सिलसिले में हम बाकायदा बैठकें करते रहेंगे और जहाँ तक हो सके एडी चोटी का जोर लगाएंगे, इन्हें कोशिश करना हमारा मकसद है और फैसला अल्लाह के हाथ में। शहर के अंदर गलियों के इलाकों के अंदर ऐलानात किए तो यहाँ पर ऐलानात तक जो है मजबूत ना रहने बल्कि जो है गली गली घर घर दावत करना है और जो है अपने काम को आगे पीछे करके उनकी मजदूरी भी जो है खत्म करके तमाम कामों को जो है करके इस राज्य को कामयाब बनाने के लिए हर साथी हर मुसलमान जो है इंशाल्लाह। इस्लाम के अंदर एक जिहाद से खत्म हुई, इसी तरह जिहाद और बार बार होता रहा, इसी तरह हम बार बार रैली करते रहेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। मैं ये बोल रहा हूँ था बाद में ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि आपकी एक एक बात भी इंशाअल्लाह बहुत मुफीद साबित हो सकती है, फायदेमंद हो सकती है, इसलिए जहन में जो है आप रख दीजिए इंशाल्लाह। शुक्रिया। बात कर दो।
मुफ्ती साहब नहीं है है नहीं हाँ है नहीं बुलाएं सबको बुलाएं बुलाना तो सबको बुलाएं साथ लेकर गाड़ी निकालना है साथ में लेकर क्या काम करना बातें हैं तमाम पार्टी को और एक हमारा कानून खत्म होने तक जद्दोजहद कोशिश अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरे जो आने वाला फजर में भी जो नौजवान है नाम निकालकर साथ में लाने की कोशिश हमारा राय है पहले रैली निकाल देंगे खासकर तो मुसलमानों में मुसलमानों के सच्चे बात रैली निकाल देंगे आगे मसला का कुछ पार्टियों में मिला के कर सकते और एक मजमत ज़्यादा चुनना था तो उलमा है मुफाद है इमा है उन्होंने ज़्यादा मेहनत करती है मजमत होता है और उसके साथ रैली में क्या बात करना वो भी क्या डिसाइड करके बोले तो अच्छा लगता अगर नहीं कोई अलग से बात करेंगे फिर वहाँ गड़बड़ हो जाए तो ये भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह बताने पड़े तो यहाँ तफसील से बात करने की ज़रूरत नहीं मैं जिस तरह बैंकिंग के पास से निकलना हुआ से वहाँ से लेकर क्या सिर्फ पटल से दर निकलना है मैं अभी हाईवे पर जाना है हमारा ऑफिस जिम्मेदार है जिम्मेदार तो पहुंचाना बात को हमारा ऑफिस जाएगा बात पहुंचा इसी तरह जो है जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं साथ अपने गाँवों को जिस तरह ऐलान में बोले हैं 400 में एक दिन को आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात मेरे तरफ से राय ये है कि हम मुसलमान किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के। बेशक ये मेन पॉइंट पब्लिक में जाने की क्या है बहुत लोगों को वक्फ बिल क्या है समझ में नहीं आता। अब मामूल विलेज में जरा कम पड़े सब में बोले वक्फ बोल तो किसके की ज़मीन है हमारे ज़मीन आ गया किसके की लग जाती हम आप बोल रहे हैं ख्याल में बहुत जने हैं वो किसको भी नहीं मालूम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम रहा आधे जने भी नहीं मालूम वो बात क्या है फर्स्ट वक्फ बोर्ड क्या है किसके ज़मीन जा रही किसके पब्लिक की हमारे जा रही खबरस्तान जाते हैं सारा कल के दिन पोखली ले को JCB ले को मस्जिद गिराने आया थी बोलने का डर हमारे आदमी में आए तो क्या तो आने का फायदा होता एक पॉइंट बोलने में रियासत अगर हाँ ना करती उन 100 हाँ करे तो उनको कुछ भी नहीं होता। बहुत बड़ा मुनाफिक और बहुत बड़ा निफाक का काम किया है हमारी सफ़े में खड़े होकर शब कदर के दिन जो है इफ्तार की पार्टी देकर खजूर खाकर दुआ पढ़कर नमाज पढ़कर और मुसलमानों के पीठ में जो है खंजर घोपा है आगे से जो है गले में इसके बारे में उनसे जानकारी की है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल लिखा है जो कानून की किताब लिखी है दस्तूर की किताब लिखी है उसी दस्तूर के कानून के एतबार से पूरा मुल्क चल रहा है उसके अंदर आर्टिकल 25-29 के अंदर खुलकर उसने लिखा है कि मुसलमानों को आज़ादी के तौर पर अपने वक्फ की ज़मीनों की हिफाजत करने की भी इजाज़त है और अपनी मजहब को भी जो है फैलाने की दावत देने की इजाज़त है। आज हुकूमत जो है JPC के जो कमेटी थी जॉइंट पार्लियामेंट एक्शन कमेटी उसके मेंबरों को अंदरूनी तौर पर यह साजिश करके जो है इस आर्टिकल को हटाने की कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह वो नाकाम रहा वो बिल को तो पास कर चुका लेकिन जो आर्टिकल 25-29 थी उसको हटाने से नाकाम रहा। इसीलिए जो है मैं आप हजरात से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ आगे भी जो है जब भी हमें आवाज़ दी जाएगी जब भी हमें बुलाया जाएगा लब्बैक कहते हुए हमें हाजिर होना चाहिए। ये नहीं कि 1-2 मरतबा चले गए बस तस्वीर में आ गए फ़ोटो में आ गए व्हाट्सएप में आ गए अपने दोस्तों को शेयर किया कि आज हमने ये बोला आज हमने इतनी महफिल के सामने जो है आगे खड़े होकर झंडा पकड़कर नारा लगाया
ये बात इससे बात नहीं चलेगी। हर आदमी अपनी जानी माली एतबार से जो है कोशिश करना चाहिए। जब तक ये काला कानून ख़त्म नहीं होता, इसकी आवाज़ दब नहीं जाती, उस वक्त तक हमको जो है एहतजाज करना चाहिए। इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, चाहे सालों गुजर जाए, इंशाल्लाह पीछे नहीं हटना चाहिए। बोलो रहमान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा मौलाना बोले, जैसा एक दो बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। आप लोग जानते हैं ये बिल जैसा ही शुरुआत में शुरू किया गया तो उस टाइम में ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से SDPI जो जानते हैं आप लोग, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि नीतीश कुमार की जगह और आगे नंदयाल में हमारे आंध्र प्रदेश की जगह, ये दोनों ने जो इसको बिल पास करने में मदद करने वाले, एक सीधा हाथ दामे हाथ के जैसा है, सीधा पैर और दामे पैर के जैसा है बोल के, ये दोनों स्टेट में सबसे पहले हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम रखे। और आप लोग भी जानते हैं नंदयाल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया था 20 तारीख को। ठीक इसी तरह 500 से 700 जगह धरने और रियाला करे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये 700 जगह अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले कोई पार्टी करी है बोले तो वो मुसलमान SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। ये करने के बाद MK फैजी साहब को सबसे पहले अरेस्ट किया गया। उनको अरेस्ट करके ले जाकर अंदर डाला गया ED के जरिए से। तो एक बात ये हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह जो करना था वो काम करे थी। अब रही बात हम लोग रैली का जो मसला चल रहा है हमारा, तो ये मसले के बारे में हमें बात करेंगे। ये तो फिक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 2 महीने से बात कर लेते आ रहे हैं, जैसा कि शकील भाई को मालूम और चांद भाई को मालूम, तकरीबन उलमा को, यहाँ हैसुना को मालूम, कई को बोले तो उलमा को बुलाकर हम लोग एक बार KJM में बैठे थे, तो वो टाइम में रखे थे, तब तकरीबन सबको मालूम है चीज़। अब रहे आगे जो चलना है उसके बारे में हमें बात करेंगे इंशाल्लाह। वो चलने के बारे में जो बात करना है वो टैंकी के पास में जो बुलाई, तो इधर जो बंगला और आगो ये सब जितने भी गवाह हैं, इधर बंगला मंडलम और पामलापाड़ मंडलम और आगो ये पूरा मंडलम के इधर बाईपास से जो गाड़ा है, आप लोग मशवरा करके और मस्जिद में ये बात बोलेंगे तो बेहतर होगा। बाईपास से जो आगे मटम के पास में से जीवन ज्योति के पास बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ हमारे गाड़ियाँ पूरे रुका के वहाँ से पैदल टैंकी तक आ सकते हैं। और रही बात इधर बिरतूर मंडलम और आपको इधर ब्रापन कोटूर, ये लोग हम पूरे इधर से मेन रोड से जाके हमारे टैंकी एरिया के पास थोड़ा उमर मस्जिद करें, वहाँ सामने ग्राउंड है, वो ग्राउंड के पास गाड़ियाँ रखे, थोड़ा पैदल आको टैंकी करने से इंशाल्लाह एक बेहतरीन अंदाज से निकले तो बहुत बड़ा फायदा होगा। और वहाँ चंद नौजवानों को इंशाल्लाह हम लोग खड़ा करेंगे, वो नौजवान रस्से बड़े बड़े रस्से रखेंगे, वो रस्सी के मुताबिक रस्सी के ग्राउंड में हम लोग आएंगे, क्योंकि रस्सी से बाहर जाके हम लोग दुकानों में उधर इधर देंगे, या हमारे साजिश करने वाले बहुत है, ये बात याद रख लो है। आप लोग जाने के टाइम ये लोग खुद खतरे वाले हैं, ऐसे भी लोग हैं, तो ऐसे टाइम पर हम लोग इस पर भी ज़हन होना है। 2 आंखें हमारे इधर है तो और एक 2 आंखें हमें गैरों की तरफ भी रखना है, वैसा हमारी होशियारपन रहना है। तो ये होशियारी से हम जाएंगे तो सक्सेसफुल होगा, वरना कुछ गड़बड़ कर देंगे वो पूरा बैड टाइम हम लोगों का आएगा। अभी ये जो बोल के हमारे सदर साहब का नंबर भी लिया है, कुछ ऐसा मामला होगा तो पहले फ़ोन करके उनको बुला लेगा। ये बहुत हंगामा होने वाले चीज़ें हैं, इस चीज़ों को बहुत ध्यान रखते हुए हमें काम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। और दूसरी और एक मेन बात क्या है बोले तो, हाँ स्टेज पर चढ़ने के बाद एक जना एक भाषण देना शुरू हो जाता है, उसको थोड़ा टाइम दे के कौन कौन से मुद्दे पर बात करे तो अच्छा रहता है। वो एक लेटर पैड में बना के, भाई अभी इसके बारे में आप 10 मिनट बात करो, 2 मिनट के बना बस आप बना के दिए तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा, बहुत फायदा होगा। नहीं तो बोले से बात बोलते रहेंगे तो फायदा नहीं होगा। और पटेल सेंटर करने आने के बाद सबको मारा है, वहाँ से इंशाल्लाह MRO ऑफिस को जाना है, MRO ऑफिस को MRO को मेमोरेंडम देना है इसके। ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ा कर दे, जो वक्त दिया गया है अल्लाह जज़ा कर दे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हमारी मुसलमानों की मदद करे। आमीन। भाई हम सब 10 पार्टियाँ के लोग हैं यहाँ, एक मसलक को हर जुड़ी, केवल ये है एक मसले को जुड़ी, मगर हमें टूपी वाले को सुन यहाँ जुड़ी, मगर यहाँ हाईसोल पार्टी वाले पूरे भी हमें भी गंदी करी वोटन डाली, किसको पसंद है उसको वोटन डाली, गलती हो गई है, गलती होने का हो गई है। या TDP करिए या YCP भी करिए, राज्यसभा में YCP सपोर्ट करिए, लोकसभा में करी नहीं, 2 MP है उनको, राज्यसभा में 6 MP है उनको सपोर्ट करिए। हमें उन करिए इन करिए नहीं, हमारा मसला, हमारा दिल दर्द हो रहा, हमारी प्रॉपर्टी हमारे कौम का बोलने का एक कॉन्सेप्ट तो चलना, सो बात कर रहे हैं, कितने जाने से करना
कितने लोगों को यहाँ पॉपुलेशन दे, कितने मुसलमान भाई से जोड़ना, कितने एक मस्जिद से अब इतने जने हैं मस्जिदा वाले, ये मस्जिद से 200 जने आती, 100 जने आती, 50 जने आती, बोलने का फिगर नहीं है। प्लान शकील भाई बोले सर का एक प्लान, कितने अभियासी आना, कितने अभियासी रैली करना, फर्स्ट वो डिसाइड करो, मस्जिद से कितने लोग आना। मौजूद हैं असातिज़ा और उलमा की बात पर क्या है, हम वक्त क्या है लब्बैक कहकर हाजिर होते हैं माशाअल्लाह। बंगाल में मेरे सो वक्त में नसीबे वाला एक अपने साथी बोले हम नंगल में बोले रहते हैं भाई असल वक्त में मुसलमानों का मसला है तो तुम्हें क्या आती है इसके अंदर ऐसा हो बोला गया था आदमी नहीं भाई कहाँ जुल्म होता है वो लोगों की तरफ हमें रहते हैं ऐसा हो उन लोगों के साथ में हमें रहते हैं उनको साथ देते हैं उनका जुल्म खत्म होने तक उनके साथ में नहीं है ऐसा ऐसी बात बोले उन्होंने इस बात से क्या होता हमारे गैर बयान जितने हैं जिम्मेदार हैं मशहूर हैं सबको क्या है जुड़ा लेना इसके अंदर सबको जुड़ा लेकर उनके सामने रखेंगे वो तो मुंह तोड़ो क्या हम बात करते रहते हैं ऐसा मुसलमान बात कर रहा है लोग बोले तो पकड़ते रहते हैं लेकिन उनको पकड़ते नहीं ऐसा इसलिए क्या होता है उनको महफिल में ले लेकर आना सामने रखना और उनसे बात कराते रहना। अब दूसरे आइमा की यानी छोटी सी हमारी गुजारिश क्या होता है हर मस्जिद के अंदर भी अच्छे जोर के साथ पर हर एक को भी दबाव के साथ पर ऐलान कर फिक्र ये बात सुनाना कहाँ कि वो उत्तर प्रदेश में चलता है कर्नाटक में चलता है आत्मा सीधा तो है हंगा के नहीं सुनगे तो हमारा अग्नि में जब कमजोर रखने के जहन क्या हम वहाँ कहीं तो रहने सब निकाल लेने के बाद से बिल पास होगा है हमें कहीं जाने के बाद से हमें करे तो क्या होता है ऐसा हमारे अग्नि के कमजोर जहनों के इंसानों के अंदर की बात है विश्वास से क्या हम बोले तो एक दिन कहे तो इमाम ही हक पर बात करते हैं और हमारी बात के हमारे मौके में सुनते रहते हैं जरा कसीर तादाद के अंदर उस दिन कानून जारी किया गया सरकार टिकट दिला को बैठकर सब कुछ जोड़कर एक साथ में उनके साथ में निकल गए बोले तो चाहे लहरा तो रख लेगा नहीं तो आटो अंदर रख लेगा एक रैली के साथ पर कौन से निकल पाना ऐसा कौन के अंदर भी मालूम होना अपना को कहेगा भाई इतने जाते हैं ऐसा बोलते एक जमात की शक्ल पर निकल कर निकल गया है वो तो दूसरों के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। अगर छोटी बात हमारे क्या बोले तो अगर हो सके बोल को बोले तो क्या तो हमारे असदुद्दीन और सुबह को बुला लगा लिए तो बेहतर होता क्या कि ऐसा कई बोलते कानून की 1 से 2 मरतबा बुला लिए आए थे वहाँ बात करे थे उन्होंने या तो भाई से बात कर लिया क्या तो सुना आदमी मशहूर है हालात के हिसाब से माहौल के हिसाब से सलाहियत के आदमी है ऐसा या तो उनको बुला लेना अच्छा हो सकता है क्या बोलने का ख्याल अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको इस्लाम में जुड़ने का मौका दिया। आदमी हमें अपने खरियों में रहते हुए हमें जहनों को क्या बिगाड़ने वाले तो तमाम जितने जमा हुए हैं ईसाई तमाम साजियों को अपने मुकद्दस को जो भी मिसालियात हैं सबको क्या जमा करके एक सुई के साथ क्या है जहाँ पर आना है वहाँ पर आएंगे तो ये क्या है आने वालों की तादाद दिखेगी। दूसरा क्या है इतनी लोग यहाँ से कौन से आ रहे हैं कौन से आ रहे हैं कितना कर रहे हैं उसी के साथ क्या है फिक्र करके सारे लोग क्या है दिल के अंदर क्या है के साथ देखिए के साथ क्या है ये कामयाब होना करके करेंगे इंशाल्लाह गुरुद्वारा कामयाब हो जाए। एक तो क्या है पहले मरतबा ये करेंगे तो दूसरी मरतबा क्या है करने का अगर क्या है नाकामयाब हो गया तो दूसरी मरतबा क्या है कामयाब करने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि पहली मरतबा कर डालें छोड़ डालें ऐसा नहीं कि क्या दूसरी मरतबा करेंगे ऐसा नहीं रखना। एक मरतबा नाकामयाब हो गया दूसरी मरतबा क्या कामयाब करने की कोशिश क्या करना। रैली करने के बाद तजुर्बा हुआ तजुर्बे की बातों में आप लोगों को सुनाते हैं। ये तो सबसे पहले 10 बजे शुरू करना होगा मशवरा कर लिए थे हर मस्जिद के अंदर भी ऐलान भी हुआ था लेकिन पहुंची कब हो तो 11:15 को ही। ये हमारा ये इजलास कल होने वाला 4 सुबह के दिनों खासकर वो वक्तों को कौन आती नहीं आती जिनके साथ हम यहाँ बैठ को है वक्तों को मैं पहुँचना ये नियत कर लेना इंसान मेरी छोटी राय। और दूसरा साथियों का आना जो है उनको लेको आना जो नहीं है वो आती नहीं आती बात की बात। दूसरा हमें यहाँ से निकालना होती है ताकि कहने से निकलना होती है हमें ऑफिस तक जाने का है। इतने दूर में कितनी जगह हमें बीच में ठहरने का है 1 जगह ठहरना 2 जगह ठहरना 3 जगह ठहरना सफर अगर हमारा लंबा है 5-6 जगह ठहरने का है
कहाँ रुकना बोलने का अभी मशवरा हो गया तो अच्छा रहता है। उधर रुको इस जगह में एक आदमी बात करने का भी मौका रहता है। दूसरा नारे कौन लगाना, वो दिन हमको बोलती आवाज दो, अब क्या बोलना नहीं समझ में आता नहीं, समझ नहीं ऐसा वो सारे चीज हमें वो तकबीर बोलने वाले कौन कौन है देखिए, जब उनको भी तय कर लिया तो फिर तो बोलने वाले हमें, अब हम कौन भी नहीं बोलते कौन कौन बोलना कि उन्हें 5 देना को 10 देना को, शुरू में 1 4 देने, बीच में 1 4 देने, आखिर में 1 4 देने, ऐसा तय कर लिया तो उन्होंने बोलने वाले अगर आवाज दिए तो उनसे हमें उनकी सच्चाई रहती, हमें उनकी तरह आवाज नहीं देती। ये मजलिस मजबूत रहना है जब ही जाकर पूरी दुनिया में काम कर सकते। अगर हमारे अंदर फूट आ गया तो समझो हमें आगे भी नहीं जा सकते। सबसे पहले इसको मजलिस को मजबूत करना है। जैसी भी जहां भी जोड़ने का ऐलान किया गया फौरन जुड़ने की कोशिश करें। दूसरी चीज आकर इसमें गैरों को भी साथ दे तो अच्छा लगेगा। अरशद मिनी साहब का भी यही बात है कि अपने साथ ईसाइयों की उनको साथ लेकर चलो, बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि वो लगभग हमारे नजदीकी है, बस अकीदे में थोड़ा फर्क है। यहूदियों का कभी होने पा रहे बाद मरतबा एनआरसी के बारे में आया तो बाकायदा उनसे जाकर मिलो और उनके साथ रहकर काम करो। ऐसा ही जमुना उर्दू में मुफ्ती कलमुल्लाह साहब, मुफ्ती सईद साहब मिलकर दोनों उन्होंने मिले हैं, फिर उसके बाद मजलिस एनआरसी के बारे में काम किए हैं, तो पूरा जमलपुर बहल गया है। इसी तरह मैं आप लोगों से देखा हूँ बहुत बड़ा फायदा हुआ है, इसी में इंशाअल्लाह शिरकत करेंगे। मेरी एक छोटी राय है, बहुत अच्छा। वालेकुम बहुत सारे बातें हुई और बहुत सारे डेले हमारे सामने आए, और इन तमाम चीज़ों के अंदर जो छोटी सी राय है कि जब इंसान वहाँ से निकल कर जहाँ पहुँचना है वहाँ तक पहुँचने में अपने अखलाक का, अपने किरदार का मुज़ाहिरा कराएंगे तो बड़ा फ़ायदा होगा। इसलिए कि आदमी जब दायरे से निकल कर बाहर निकल जाता है और नारा अलग लगा देता है या कोई और शैतानी मसाविस की वजह से कोई एक काम कर बैठता है, तो इससे हमारे को दाग और धब्बा लगने का इम्कान है, और इससे बचना है तो हमें पहले अखलाक को बनाना है, और अखलाक के साथ और जो कानून हमें दिया गया अमन के साथ जो रैली निकालने का हुक्म दिया गया, इसके साथ में हमें सुकून और इत्मीनान का लिहाज रखते हुए अगर रैली निकालेंगे तो इंशाअल्लाह इसका बड़ा फ़ायदा होगा। अगर इसको छोड़कर यानी हमारी आवाज़ बुलंद करने के कादिर या कुछ ऐसे हरकतों की वजह से, लेकिन जैसे सामने वाले को असर बुरा लगे तो जिससे नुकसान होने का भी इम्कान है, इस लिहाज से पहले हम हमारे अखलाक को और हमारे किरदार को बनाने और इसके सहित यानी कानून के दायरे में रहते हुए इस रैली को निकालेंगे तो बड़ा फ़ायदा होगा, अहसन होगा। अल्लाह से दुआ है। के खिलाफ इतनी देर से आवाज़ उठाओगे, इतनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। के खिलाफ इतनी देर से आवाज़ उठाओगे, इतनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये आज हमारे लिए मौका है, हमें आवाज़ को समझा करके है रैली को कामयाब करने की कोशिश करना। एक ज़माना वो था माएँ अपनी बेटों को, बच्चों को क्या है दूध के नीयत से पिलाती थी, मेरा बेटा बहादुर बनना, मेरा बेटा नेक बनना, मेरा बेटा दीन का काम करने वाला बनना, मेरा बेटा मुल्क को बचाने वाला बनना। ये नीयत के साथ क्या है माएँ दूध पिलाया करती थी। आज माएँ क्या करती है, बोलो दूध पिलाने की पिलाती है, मेरा बेटा सो जाना, क्या करो मेरा बेटा सो जाना। इसलिए आज पब्लिक पूरी आवाम पूरी दुनिया वाले क्या है सो चुके हैं। ये वक्त के बारे में किसी को मालूम नहीं है क्या है क्या होने वाला है। अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर क्या है एक जुल्म तो है, लेकिन हमारे को क्या है जगाने के लिए क्या है अल्लाह की तरफ से क्या है एक वक्त बिल्कुल क्या है पास कर दिया गया है। हमें इसको रिजेक्ट करने के लिए, इसको रद्द करने के लिए हमें क्या है आगे आना है। हर फर्द घर घर से क्या आकर क्या है इस रैली को क्या है कामयाब करने की कोशिश करना है। जैसे कि मौलाना बताएं, मौलाना निकालने के बाद किसी में
ये कि हजरत की गाड़ी वीडियो के जरिए बताया था, अगर कोई रुकू बुलाना चाहते हैं तो हम इंशाअल्लाह वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पर हमारी वाज़ की बात होगी, और जिसके ज़रिए जितना हो सके हमें कोशिश करेंगे इस वक्त के खिलाफ लड़ने के लिए और लोगों को समझाने के लिए। और बहुत सारी बातें हम लोगों को सुनने को मिली, तो उसमें से दो बातें मैं अपनी तरफ से इशारा करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, हम लोगों को ये भी करना है, जैसे हमारे सलाम भी सुना रहे थे, दुआओं का एहतमाम, ये दुआओं का एहतमाम आकर हम लोग आकर सलातुल लैल रात की नमाज में अगर पढ़कर दुआएं करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे ये प्रोग्राम और भी ज़्यादा मौसर होंगे, इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी आपको देखने को मिलेगी। और दूसरी बात मेरी तरफ से ये भी है कि यहाँ जितनी भी बातें आई हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग मशवरे दिए, ये बातें अगर कोई विषय रखते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा होता था, क्योंकि बहुत सारी बातें नहीं थी, किसी की तरफ से कुछ मशवरा, किसी की तरफ से कुछ मशवरा, तमाम बातों को अगर एक जगह करते तो जिम्मेदार आखिर में कौन सी बात कैसे करवाएं क्या ध्यान जा सकते हैं आसानी से। और दूसरी बात ये भी है कि सबसे पहले मेरे मशवरा ये भी है कि हम लोग हमारा प्रोग्राम अगर कामयाब बनाना है, मौसर बनाना है, तो ख़ासकर इसको मुनज़्ज़म अंदाज में करना है, मुनज़्ज़म अंदाज में, और ख़ासकर मौसम के लिहाज से कुछ पानी का इंतजाम भी होना पड़ता है वहाँ पर, उनके बहुत सारी इंशाअल्लाह पब्लिक जमा होगी, तो पानी के इंतजाम के लिए कुछ लोगों को बाकायदा तौर पर तय कर दिए तो ये भी बेहतर अंदाज रहेगा। और जैसा कि कुछ अहबाब कुछ उलमा किराम सुना रहे थे कि हम लोग कहाँ कहाँ ठहरना है, कहाँ किस लोगों को कुछ बात क्या बात करना है, ये बात जाकर बाकायदा तौर पर जिम्मेदारान बहुत पहले ही लोगों को बता देंगे तो ये भी बेहतर रहेगा। और ख़ासकर नारेबाजी के ताल्लुक से बात आई तो नारेबाजी के ताल्लुक से हम लोगों को खासकर इसका एहतियात करना है कि नारे कौन लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, और नारे लगाने वाले के नारे में उस सामने के पब्लिक अगर क्या ज़्यादा देखने को मिलेगा, फायदे के बाद नुकसान ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर कोई आकर कुछ फेंक दिया, किसी की गाड़ी को लगा दिया, ये बेहतर नहीं रहेगा। और आखिरी बात मैं अपनी बात कहकर अपनी बात खत्म करूँगा। हमारे शेख बता रहे थे अखलाक का हमारा बेहतर अंदाज में मुजाहरा होना चाहिए। इस्लाम का बेस आकर अखलाक के ऊपर है। हम लोग खास कर जहाँ से निकलेंगे वापस भी रिटर्न घर का आने तक हम लोग हमारे नॉन मुस्लिम जितने भी गैर मुसलमान हमारे आजू बाजू से गुजरेंगे, उनके घरों के पास हमारी गाड़ियाँ जाएंगी, उनके दुकानों के पास हमारा गुजर होगा, उनसे बातचीत होगी, हम लोग कहीं किसी के सामने खड़े होंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो खासकर हमारा ये भी अखलाक, हमारा अखलाक ये भी होना चाहिए कि सामने वाले किसी को भी कोई भी तकलीफ ना हो हमारी गाड़ी से, हमारी बातचीत से, हमारे चलने फिरने से, हमारे आने जाने से, हमारे खड़ने से, हमारी गाड़ी पार्क करने से, ये मामूली चीज़ें, लेकिन इंशाअल्लाह ये चीज़ें तमाम चीज़ें हम लोग ख्याल करना चाहिए।